पल पल का खबर ले रहे थे वो ना, वो तो हमारे लिए भगवान है मुख्यमंत्री जी। People at Pihirit village, exhausted and relieved at the same time. In one corner, a massive mountain of mud and a crater 60 feet deep. Remnants of a rescue operation that lasted nearly 4 days. It is from this narrow passage, almost the size of a hole, that an 11-year-old boy was finally rescued. This hole unified Chhattisgarh in prayer for 5 days. A hole less than a foot in diameter but 60 feet in depth that saw a nervous, breathless rescue operation by multiple agencies and 500 men for a full 104 hours. पल पल की खबर हम लोग लेते रहे कि अब क्या। फिर रेस्क्यू के लिए कटक से भी टीम आई, गुजरात से भी रोबोट वाले बुलाए और आखिरी में तो रस्सी बांध के लड़के को उल्टा लटका के भेजा गया, वो फिर निकाल के लाया। After being trapped 104 hours in a dark, water-filled borewell, 11-year-old Rahul Sahu was pulled out to safety. Dazed, he could barely hear the applause that greeted him or comprehend the tears and shouts of joy which rang out as he miraculously emerged out of the borewell. At 4 p.m. on Friday, the 17th of June, Rahul's mother Geeta Sahu sensed something was wrong. Only 15 minutes earlier, she had seen her son playing with friends just outside their home. But then, all she could hear were muffled and faint sounds of him crying. Frantic, she ran looking for her child, only to see that he had fallen into the tiny opening of an unused borewell. हम लोग 2 बजे खाना खाए घर पे, हम दोनों ही थे। फिर 2 बजे फिर थोड़ी देर आराम किए, 3 बज गए उसमें। फिर ये उठा, एक आंगन है, दूसरा आंगन है हमारे अंदर ही तरफ, उसमें खेल रहा था। फिर 10 मिनट बाद इसको देखी, 10-15 मिनट बाद ऐसी देखी कि वहाँ पर नहीं था। फिर ढूंढी उसको, फिर वहाँ पर नहीं था। फिर एक और आंगन उसमें गई, वहाँ पर भी नहीं था। जिसमें हम ढके थे ना, पत्थर वगैरह, छोटा लकड़ वगैरह को, उसको निकाल लिया था ना, वो निकला हुआ दिखा। फिर दूसरे रास्ते से गई, चिल्लाते चिल्लाते राहुल राहुल राहुल। फिर उसी बोरवेल के पास गई ना, फिर चिल्ला रही थी तो फिर आवाज आया रोने का इसका। हमारे पास एक चादर था सर लोहा का, उसको हमने उसमें ढक भी दिया था और लक्कड़, इतना बड़ा लक्कड़ था सर, उसको हमने क्रॉस बनाकर भी रख दिए थे। पर पता नहीं सर वो कैसे उसको निकाला और कैसे उसमें घुसा, इसको ना मम्मी देखा है ना सर मैंने देखा। फिर मम्मी ने पड़ोस वाले को चिल्लाने लगा सर, चिल्लाने लगा। फिर पड़ोसी भाई लोग सभी आए, गांव के जो भी मुखिया था, सरपंच था, सभी लोग आए और गांव के लोग 112 को भी कॉल किए सर। उसके बाद मैंने भी वहां से रास्ते में अपना जो विधायक महोदय है, मैं उनको कॉल किया सर। फिर उनको कॉल किया, फिर वो बोला कि बेटा टेंशन मत ले, मैं अपना काका है भूपेश सरकार, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। Quickly a call was made to the Jangir Champa police. The information then relayed to the district administration. By 4:45, District Collector Jitendra Shukla had placed calls to officials of the Public Health Engineering, the PWD, the Electricity Board and Mining departments, asking them to urgently assemble at the spot. A call was also made to the Home Department, asking them to arrange for rescue and relief teams of the NDRF, the State Disaster Response Force and the Indian Army. By 6:15 p.m., every senior official had reached the spot. The area was cordoned off and rescue operations began.
The Chief Minister himself kept a track on the rescue operations, taking updates via video calls. सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है। हर कदम पे अड़चने आती गई और लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सेना हो, एसीसीएल के लोग हों, प्राइवेट पार्टीज हों, वहाँ जनप्रतिनिधि हों, आम जनता हो, सब ने पार्टिसिपेट किया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग के लोग उसमें लगे और तब जाके रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया। मतलब मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था और कठिन ऑपरेशन था और सफलतापूर्वक इसको संचालित कर लिया गया। जबकि वहाँ बड़े बड़े चट्टाने भी मिले और सांप भी आ गया था, वो भी जहरीला सांप था उस बीच में। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे के साहस की दाद देनी पड़ेगी। The task was not easy. At first, the team attempted to bring Rahul out using a rope with a manual crane. But Rahul was unable to hold on to the rope, and then there was only one option, to bring him out through excavation. जब ये बातें पता चली तो हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। फिर भी हमने हमारी जो दूसरी टीम थी, जो ऊपर पहले आते ही हमने बोरवेल पे चीज़ें सिक्योर की। हमने ऑक्सीजन पाइप वगैरह जो पहले से चल रही थी उनको सबको चेक कराया। वीडियो कैमरा वहाँ पे डाला गया ताकि बच्चे की लोकेशन देखी जा सके। The initial prognosis was not encouraging. The ground was extremely rocky and the rescue was not easy. पीएचई के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ जो स्ट्रेटा है उसका प्रोफाइल कैसा है। उन्होंने बताया कि पूरा रॉकी है और 100 फीट तक यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट नहीं मिलता। तो तभी हमको जो हमारे सामने एक जो चैलेंज था उसके बारे में जानकारी लगी कि ये चैलेंज इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल वन। A camera and a sensor were dropped 60 feet inside the borewell. And what the rescue team saw worried them. The boy was not alone. The camera picked up two other signs of life in the deep crevice, a frog and worryingly a snake. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमारे कैमरे ने डिटेक्ट किया कि एक स्नेक है, फ्रॉग है, स्नेक को देखते ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि एक जो फियरनेस की जो फीलिंग है वो फियर फीलिंग मुझे कितनी आई थी और मुझे लगा कि ये हमारा चैलेंज तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगने लग गया था। By Friday night, the rescue teams comprised of more than 500 personnel, with officials of the NDRF and the Indian Army taking the lead. There were 50 machines engaged in excavation, including tractors, other vehicles and electric drills, and rows of trucks that worked through the night, lifting the excavated mud. It was a challenging task. हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। हमने फिर मशीनों को जिला प्रशासन से हम लोगों ने तय किया, बात किया गया कि इस तरह की चुनौती से कैसे निपटा जाए। तो हमने और जिला प्रशासन ने हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग कुछ बड़ी मशीन मंगाते हैं। हम लोग का काम सपोर्ट लाइन मेंटेन करना था ताकि उनको इक्विपमेंट का या फिर बड़े बड़े जो अर्थ मूवर्स है उसमें किसी तरह के दिक्कतें ना आए। जैसे अर्थ मूवर्स को कोरबा या रायगढ़ से लाना था तो बाकायदा उनके लिए हम लोगों ने पायलटिंग की व्यवस्था की ताकि वो गाड़ियाँ जल्द से जल्द पहुँचे। The immediate idea was to excavate next to the borewell and then drill a tunnel to reach Rahul Sahu. The work was slow and arduous, a misstep potentially meaning death. The first task was to ensure Rahul had access to oxygen, dropped down through the borewell using 2 pipes. The other was that he had to be fed. 6 bananas, 3 boxes of juice and 2 packets of ORS solution were sent down through a makeshift pulley every day. बच्चे ने जब केला खाया तो हम लोगों को बड़ा रिलैक्स लगा कि हमको एक्चुअली जब बच्चा जब भी कुछ खाता पीता था तो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करता था, हमारे ऑपरेशन को बल मिलता था कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है और साथ ही साथ जब भी कुछ खाता पीता था तो उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती थी। हमारे ऑपरेशन के लिए हमको टाइम मिलता था। But success was far, far away. On Monday, rescuers were facing another crisis. There was another crisis. At 12 p.m. on Monday, rescuers realized that there was water rising in the pit.
बेहतर ये है कि हम वाटर टेबल को भी कंट्रोल करें। अब कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो यही थी कि आसपास के जितने ट्यूबवेल्स और बोर्स हैं, हमने ये मानते हुए कि अंदर में एक्वाक्लूड पे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, हमने सभी गांव वालों से अनुरोध किया कि आप अपने जो ट्यूबवेल्स हैं उनको ऑन मोड पे रखें, भले ही वाटर वेस्ट हो रहा है। When rescue seemed certain, another hurdle hit. The rescue team was very near to the boy in the borewell, but they came up against a rock difficult to dig through. By Monday, rescuers were hopeful that they will reach Rahul Sahu quickly. The sedimentary rocks easy to cut through, but at 6 p.m. on Monday, rescuers hit dolomite, a rock that is difficult to drill through. हमको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। हम फिर ऊपर 57-56 फीट से हमने टनल को बनाना चालू कर दिया था, और अब हमारी जो प्लानिंग में चेंज ये था कि बच्चे को हम ऊपर से ग्रैब करेंगे। तो आप सोचिए कि दिक्कतें हमारी कितनी बढ़ गई थी। उसके बाद हमको चट्टान मिली, चट्टानों को हमने तोड़ना चालू किया, तो जो हमारे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट थे, जो हमेशा जिससे हम टनलिंग का काम करते थे, वो सही तरीके से हमको रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। जब हम 60 फीट डेप्थ पहुंचने वाले थे, तब हमारा रास्ता एक चट्टान ने रोका। जब इसको निकाले, तब हमारे सामने लगभग जो है 12 फीट का चट्टान, और जिसकी मोटाई अनुमान 18 फीट की थी। तो एनडीआरएफ की टीम और हमारी जब हम काम कर रहे थे, तो हम लोग का जो है रात को 3:30 पौने 4 बजे जो है हम लोग जो है अवाक रह गए कि अब इसको काटे कैसे, क्योंकि हमारे पास छोटी ड्रिलें थी, छोटा स्टोन कटर था, और तमाम सारी इक्विपमेंट जो डोलोमाइट के सामने कमजोर पड़ गई थी। While the government rescue team worked hard, there were other people who also helped. Real-life heroes of this amazing story. Men like Anjeer Ratnakar, with an expertise in mining, who chipped in, and Sarpanch Kiran Kumar, who provided food and water for the entire rescue team for 4 days. सभी आ गए थे, काम में जुट गए थे, ऑक्सीजन डॉक्टर सभी। फिर हम लोग धीरे धीरे अब देखते गए तो आदमी का भीड़ और इतना पूरा काम, और उसको देखकर हमको अंदाजा नहीं हुआ कि क्या करें, कैसे करें। तो इन लोगों को हमने सोचा कि कम से कम पानी, खाना पीना, खाना सभी को खिलाना चाहिए। With time running out, a chain of rescuers reached the tunnel at the top of the ramp. They were worried as Rahul had stopped eating. At 6:30 p.m. in the evening, a breakthrough. Camera monitors following the teams drilling the parallel tunnel were suddenly filled with a bright light. They had finally reached Rahul Sahu's borewell. Rescuers first picked out the frog and the snake from the well. Another 4 excruciating hours later, Mohammad Anjarul, with a belt around his waist, reached the borewell and touched Rahul's hand. सेफ्टी बेल्ट लगा के मैं उल्टा अंदर गया था। अंदर जाके राहुल को जगाया था, राहुल बेटा उठ जाओ, तुमको लेने के लिए हम आ गए थे। आ गए हैं, और उसको उठा के सीधा करके सेफ्टी बेल्ट बांध के, मेरा जो बड़ा भाई था उसको मैं इशारा किया था कि भाई टानो, हमको टानो ऊपर। ऊपर जो खींचने के बाद वो राहुल को खींचा था, और जब दोनों ही बाहर आया था तब मैं बहुत खुशी था जो राहुल को बचा लिया हमने। Grabbing his fingers, he pulled the boy out to safety. It had been 104 hours for 11-year-old Rahul Sahu, trapped inside a dark, water-filled borewell. But Rahul was not out of danger. 104 hours in the borewell had taken their toll, and he was rushed to a hospital in Bilaspur, 100 kilometers away. बच्चा बाहर आने में, चूंकि बच्चा 104 घंटे बोरवेल में था, तो ये ज़रूरी था कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें वो एक्लेमेटाइज हो सके। तो उसको एक ग्रीन कॉरिडोर बना के उसको जो नियरेस्ट सबसे अच्छा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया था। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है, और पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया था, और पूरे एरिया में पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, फिक्स पॉइंट लगाए गए थे यहाँ से लेके बिलासपुर तक, और उनको लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट करने में सफल हो गए। कॉरिडोर ज़रूरी था कि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो जल्दी ठीक हो जाए उनके। Rahul had developed sepsis. His wounds were infected. His limbs and body stiff. उसका हार्ट रेट बहुत हाई था, तो ये समझ में आया कि बहुत दिनों से नॉर्मल न्यूट्रिशन या फिर एडिक्वेट पानी ये सब नहीं मिला होगा। तो वो सब हम लोग नेचुरली करेक्ट करने का सब तुरंत ही स्टार्ट हो गया। और दूसरा चीज़ जो था उसका
पॉस्चर में उसको ऑलमोस्ट एक जो धनुष टंकार बोलते हैं ना, उसका बैक का स्थिति वैसा था, ओपिस्थोटोनस पॉस्चर बोलते हैं हम लोग। सोच भी नहीं पा रहे थे कि एकदम। हमारे जो और अपोलो के स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं उनके साथ हम लगातार टच में थे और उनसे हम पूछते जा रहे थे कि हम ठीक है, हम ठीक थे, बट फिर भी एक बार राय ले लेना, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन एक अच्छा रहता है, विच गिव्स अस द कॉन्फिडेंस। फिर भी रखते हुए कि सब कुछ ठीक जा रहा है, फिर भी हमने तैयारी करी हुई थी कि खुदा ना खास्ता अगर एयरलिफ्ट भी कराने का पड़े तो उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी कर रखी है। Every passing hour was a test, but Rahul finally came out, having got the better of that cruel master, death. डॉक्टर तो बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ही अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं, अपने बच्चे की तरह हैंडल कर रहे हैं उसको। पल पल का खबर ले रहे थे वो ना, पल पल का क्या कर, मतलब कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, पल पल का ना। वो तो हमारे लिए भगवान है। मुख्यमंत्री जितना भी अधिकारी, जितना भी NDRF जो भी मतलब अधिकारी थे वहाँ पर, उसको तो मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री है ना भूपेश चाचा अपना, वो इतना आप क्या बताएं सर, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं हम। इस बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो सब लगाओ। तो एक जब अधिकारी को ये चैलेंज मिल जाता है और उसके बाद उसको काम करने की छूट मिल जाती है, तो फिर वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। तो उस प्रकार से सब लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों का योगदान रहा और पूरे देश के लोगों की जिस प्रकार से बच्चे के प्रति जो भावनाएं थी, जो दुआएं दी, आशीर्वाद दिए, और वो भी काफ़ी काम किया। Pihirit can now sleep peacefully. Their son is back home. He still has difficulty speaking, but he has proven that human endurance is often unbeatable. Rahul has a will of a rock. He has his difficulties, but he proved to be mentally stronger than many. In Pihirit, with my colleague Zulfikar and camera person Rizwan Khan, Anurag Dwari for NDTV.